constant throughout the first of all, let me tell you, you must be wondering why there is a negative frequency. What is the concept of negative frequency? दुनिया में कोई होती है क्या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी? ठीक है ना? क्या तुमने -5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुना है क्या? Have you heard? No. Nobody must have heard practically. लेकिन क्या है कि दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. जितने भी फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशंस हैं, ऑल ऑफ देम, जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशंस हैं ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ टर्म e raised to the power jx. So if there is e raised to the power jx, there has to be e raised to the power minus jx as well, so that either this is made cosine, cos x, or sin x if there is negative sign and divided by j. Therefore, minus frequency is a theoretical concept. It's not practically possible to have negative frequencies, but in order to satisfy mathematics, we take negative frequencies as well. As positive frequency, we treat them at par. So minus omega c is to satisfy mathematics. Are you getting me? So practically speaking, this is the is here, same thing will be repeated here and like that. This is the frequency response. This is a periodic, always the frequency response is always periodic for anything. I mean, we consider only this portion. Whatever is the information in this portion, same is the information contained in this portion, same is the information contained in this portion. Okay, so there is nothing new we will get after 2 pi. And that's the biggest advantage, in fact, of going into digital domain. The biggest advantage of digital signal processing is that we have to look into a window of 2 pi only. We have to look into it plus infinity. But in digital domain, you have to look into a frequency interval of 0 to 2 pi. That's the idea. And what I was telling you is that an ideal low pass filter has got this sort of response. तो लेकिन practical filters जो होते हैं, practical filters are never ideal, so they are like this. मतलब ऐसे रेस्पॉन्स मिलता है. ठीक है ना? ओमेगा सी कहीं यहां है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन नाइदर दिस इज कांस्टेंट. ठीक है ना? लाइक हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स, these roll of characteristics, we call them roll of characteristics, which are available in ideal low pass filter, which is, this is very sharp, you know. The transition is very sharp from pass band to stop band. So such a sharp transition you never get. So here your pass band ends, here your stop band starts. This is stop band practically. This is pass band, of course. This is pass band. And this is called the transition band. This is called the transition band. Transition band. So that is the situation. So this is pass band. This is pass band. And this is stop band. High pass है ना? देखिए इसी तरह से बैंड पास फिल्टर, आइडियल बैंड पास फिल्टर will be like this. Is taken as 1. The gain of the filter is taken as 1 because we do not want the filter to be an amplifier. Amplifier is amplifier. Its action is, its idea is to increase the amplitude of the input signal. But filter
the mandate of filter is different. Here we want to pass some frequencies and we want to stop some other frequencies. That's the mandate of a filter. We do not want that it should amplify the signal or it should attenuate the signal. Neither amplification nor attenuation. So therefore, the gain of the filter is taken as 1 in the pass band. The frequencies which it is passing, उन frequency components का gain जो है, that should be 1. स्टॉप बैंड वाली तो 0 हो गया गेन उनका, तो ये तो 0 हो गया, और जो पास कर रहा है उसका गेन जो है वो 1 हो गया. दैट्स द आइडिया. समझ रहे हो बात को? सिमिलरली जो तुम्हारा बैंड स्टॉप फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर, तो बैंड स्टॉप फिल्टर ऐसा होगा. टू ये बात को कि नहीं समझ रहे? This is band stop filter, and whenever the bandwidth, this is called the bandwidth. So whenever very small, then we call it notch filter. So that you know, but here the bandwidth, this bandwidth is very small. And let us say this is the frequency omega of the filter becomes 0. So that means this particular frequency will be completely filtered out. Filtered out. ठीक है ना? This will not appear in the filter. Rest of the frequencies are all will be present in the output. Here the difference in case of image processing and signal processing is that here we do not have one omega. Rather than a single omega, we have two frequencies, U and आपके पास में frequency domain में there are two variables, U and V. Frequency along x-axis, frequency along y-axis. Signal processing में you had only one frequency, omega, और आपने plot कर लिया सारा कुछ. But यहाँ पर if the same plots are to be done here, then okay, the frequency response of the filter will be denoted by HUV first of all. Your H omega gets replaced by HUV. One dimensional, it is called one dimensional frequency response. There is all this pass band, there is stop band, and there is one cutoff frequency omega C. Here in this case, you have the ऐसे बनेगा, मतलब ideal if you go to ideal ऐसे बनेगा, ठीक है ना? और practical ये this whatever is shown here, that is the practical thing. ये वाली चीज ये है. Actual response ऐसे होता है ना, as I told you. Actual response जो है, as I told you that this is of this nature. ऐसे होता है, ऐसे, ये पास बैंड, ये स्टॉप बैंड, यहां से स्टॉप बैंड, और ये ट्रांजिशन बैंड बताया था आपको मैंने, यहां तक ट्रांजिशन बैंड. वही है ये वही है. The response is like this. You can see but it is two-dimensional. When you make it two-dimensional, it will become like this. ये negative frequencies भी यहाँ पे ले रहे हैं. Negative frequencies ये ideal है, ये तो ideal है, लेकिन negative frequencies भी तो लो यार. So, just a minute. Negative frequencies जो है वो भी लोगे तो ऐसा response आ जाएगा. तो समझ रहे हो कि if two dimensional, if a low pass filter is there, then frequency response of that filter, practically it is
plotting, if you plot the frequency response, it is like this. Here somewhere here is your origin, ये है ना u एक्सिस, ये है v एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपका ओरिजिन है 0 0, u की वैल्यू इज 0, v की वैल्यू इज 0, तो दिस इज द ओरिजिन। So if suppose you pass an image through low pass filter, the same image which you have seen, this is the original image. This is the original image. So this I pass through the low pass filter. Then you know that after passing through low pass filter, the image gets blurred. It has become blurred. So this is after output of the filter. ठीक है ना। If you pass the same image through a high pass filter, so you know that here at this origin, I mean the h uv is 0 here. देख रहे हो ना, 0 है, ये वैल्यू 0 है ना, ओरिजिन पे फिल्टर का गेन जो है वो 0 हो गया। हाई पास फिल्टर है ना, हाई पास फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी, यहां से हायर फ्रीक्वेंसी, दिस इज पास बैंड, ये मतलब पास बैंड यहां से शुरू होता है, इसका मतलब पास बैंड, ये सारा ये पास बैंड है, ये स्टॉप बैंड है, ये वाला स्टॉप बैंड है, स्टॉप बैंड। इससे कंपेयर करो, ठीक है ना। जो तुम्हारा प्रैक्टिकली जो हाई पास फिल्टर होता है वो ऐसे होता है। ये जो कर्वेचर, ये जो चीज है, बैंड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ओमेगा सी से आगे बैंड है, दिस फ्रीक्वेंसीज विल नॉट पास, ठीक है ना, जो इसके अंदर है, ये स्टॉप बैंड है कि H00 की वैल्यू यहां पर 0 है, देख लो, H00 में of the image। और तुमको बताया था मैंने कि FUV has to be multiplied by HUV, this is multiplication, ठीक है ना। तो सेट जब when HUV is 0 तो क्या होगा कि FUV जो है वो 0 हो जाएगा एट दैट पॉइंट, और F00 जो है वो एवरेज ब्राइटनेस होता है, तो उसकी वैल्यूज मतलब GUV की जो मतलब G00 हो जाए, G00 विल बी 0 जब मल्टीप्लीकेशन होगा, इसकी तो कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। एवरेज ब्राइटनेस इसकी सीन की कुछ एवरेज ब्राइटनेस है, सपोज कर लो इसकी एवरेज ब्राइटनेस जो है लेट्स से 150 है, ओके फाइन, एवरेज ब्राइटनेस 150 है, 0 to 255 किसके का इंटेंसिटी अगर हम ले, तो दैट मींस एट द सेंटर GUV विल बिकम 0, इसका मतलब G00 विल बी 0 एंड दिस विल लुक ब्लैक, एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द रिजल्टिंग फिगर विल बी ब्लैक। तो वो वही चीज है, ये सेम थिंग। सो इफ यू वांट टू हैव सम ब्राइटनेस even after passing through high pass filter, you have to slightly change your filter in this manner. This fellow should not become 0. Now this has not become 0. अब 0 हो सकता है, तुमको 0 लग रहा हो, तुम इसको ऐसे ले लो यार, चलाई, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता ना, कहीं से मारा हुआ है ये एक्चुअली ना, आई कैन नॉट एडिट, लेकिन कोई बात नहीं, आई अंडरस्टूड कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि भाई तुम्हें लग रहा होगा कि एट दिस पॉइंट स्टिल इट इज 0, तो लो यार, ऐसे मान लो रेस्पॉन्स, ऐसे ले लो, अब तो ठीक है। सो एट दैट मीन्स दिस मच इज लेफ्ट, आई मीन
एच यू वी यानी कि H00 in this case is not zero. Rather, this is resulting image will not be zero this time as it was previously. So both are same, मतलब low high after passing through high pass filter. Can you see that the edges of the image have got sharpened? This was the original image. Just see once again. This was the original image, and after passing through high pass filter, there is sharpening of the edges of the filter. The image will be sharpened. After passing through low pass filter, the image will be blurred. तो अब तुमको पता है कि क्या करना है. करना ये है कि there is an image fxy in space domain. You have to multiply this by -1 raised to the power x plus y, because you want to shift the origin of the Fourier transform at the center. It should be visible to you properly. So initially the corner points indicate the average brightness, but when we shift the Fourier transform, then the center point of the Fourier transform starts showing the average brightness of the image. So we want to see there. So okay, we shift the image. So every intensity value of the image will be multiplied by -1 raised to r corresponding x and y of that pixel. So you will have the new values of intensity. Okay. So एक तरह से तुमने थोड़ा सा चेंज कर दिया इमेज को, स्पेशल डोमेन इमेज को. तो वो लिखा है कि सेंटर करने के लिए किया है ये. फिर उसका हम FFT ले लेंगे. We will take fast Fourier transform. Fast Fourier transform or DFT is the general name, but calculated with a special algorithm. Okay, there was a special algorithm which was invented to keep the calculations minimum. So that procedure is called fast Fourier transform. Fast Fourier transform is not something new. It is a discrete Fourier transform of a signal or image, but calculated by a particular algorithm. Are you getting me? So that was the Tukey का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं. Tukey algorithm था, and then when that algorithm is applied, then we call discrete Fourier transform as fast Fourier transform. कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो नामकरण संस्कार है जो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो we have taken the DFT of the image. So ये DFT of the image आ गया भैया. ये आपका FUV आ गया. This is the DFT. उसके बाद में इस DFT भाई साहब को मल्टीप्लाई करेंगे फिल्टर फंक्शन से. फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर कह दो या फिल्टर फंक्शन कह दो, इट इज द सेम थिंग. दिस इज कॉल्ड फिल्टर फंक्शन इन जनरल. फिल्टर. तो यहां पर आ गया आपका प्रोडक्ट FUV मल्टीप्लाइड बाय HUV. ठीक है, यानी कि GUV विच इज कॉल्ड आउटपुट का DTFT मतलब. ठीक है ना, आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये. आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसका हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे. तो हमारा हम फिर वापस स्पेस डोमेन में आ जाएंगे. और स्पेस डोमेन में जब हम आ गए तो फिर से -1 raised to the power x plus y से मल्टीप्लाई करेंगे back to the original position. तो -1 raised to r, that means the filtered image in the, ये लो पास फिल्टर का, ये हाई पास फिल्टर का, ये भी हाई पास फिल्टर का with एवरेज ब्राइटनेस. ठीक है, ये भी हाई पास फिल्टर है with एवरेज ब्राइटनेस नॉट बीइंग मेड 0. तो अब हम ये देखो, हम हमारे पास जो फिल्टर होते हैं वो होते हैं
देखो ये समझ गए तुम, GUV विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस, वो सब पता है तुम्हें। तो व्हाट आर द फिल्टर्स? आइडियल लो पास फिल्टर। अब तुम बस देखते जाओ, ये आइडियल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, ठीक है ना। सेंटर में अगर तुम देखो तो ये कांस्टेंट है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से 2 डायमेंशन में जो ये होता है। राइट हैंड साइड में से समझ लो 2 डायमेंशन में क्या होता है। राइट हैंड साइड में 1 डायमेंशन शो की हुई है, दिस इज 1D फॉर ए सिग्नल एंड दिस इज 2D फॉर इमेज। समझ गए? ये जस्ट इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, द मिडिल वन। इट डजंट मीन एनीथिंग, यू नो। ये ओनली थिंग इज कि ये जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, they have been shown in the form of an image, that's all, as if this is white portion and this is black, ये सारा black है, ये सारा black है, ये सारा black है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, it doesn't hold anything, छोड़ दो इसको। और ये है, तो आइडियल लो पास फिल्टर जो है, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है? 1 होता है अप टू ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड 0 होता है आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, ये कट ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहां पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं करते। वी डोंट पुट द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रादर वी पुट द हाउ मेनी पिक्सेल्स आर देयर टिल दिस पॉइंट। भाई या तो ये कह लो कि ये 0 फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर ये जो है हाउ मच दिस इज, है ना। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ, सो ये डी नॉट यहां पर भी बना रखा है, देखो ये डी नॉट शो कर रखा है। तो टिल दैट पॉइंट डी नॉट योर फिल्टर गेन इज 1, दिस इज 1, ये जो दिख रहा है ना ये 1 है, और उसके बाद में ये 0 है, ये कह रहा है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और इस ही हैज पास दिस इमेज थ्रू ए लो पास फिल्टर। तो तुम देख लो कि ये लो पास फिल्टर जो है, उसके बाद में ये तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है यार, अभी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है, ठीक है ना, नथिंग एल्स, इसका डीएफटी। और इस पे शो किया इसने डिफरेंट डी नॉट वैल्यूज शो की हैं, दैट्स ऑल, जस्ट टू मेक यू अवेयर व्हाट इज डी नॉट। डी नॉट मीन्स कट ऑफ पिक्सल distance of this DFT, or from the origin this distance is some 15 pixel, this distance is 80 pixel away, and here you are in, suppose ये वाला जो है that is 230, बोला ना, देखो नीचे देखो लिखा है at the bottom 230 का है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है मैंने बता दिया तुम्हें 80 का है, 80 से कम जो है वो 30 का है, ये 30 का है, 15 का ये है, और 5 का तो बहुत ही छोटा है एक्चुअली ना, सारी लाइन हो रही है इधर। सेंटर तुम समझ रहे हो कि सेंटर कहाँ है, दिस इज योर सेंटर, एंड फ्रॉम द सेंटर this is d naught equal to 230, ये डिस्टेंस पे है d naught equal to 80 एंड सो ऑन। स्मॉल भी है यहां पे, क्रंच है एक तरह से। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टेकन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट्स द आइडिया इमेज प्रोसेसिंग में। तो ये देखो ये ओरिजिनली डी नॉट जो है दैट इज 5, इसका डी नॉट जो है दैट इज 5, ये डी नॉट इक्वल टू 15, ये डी नॉट इक्वल टू 30। लो पास फिल्टर की कट ऑफ
पिक्सल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कहां तक के कंपोनेंट्स पास करने हैं, मतलब किस पिक्सल तक के, ठीक है ना। फिर से देख लो कि दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपका ओरिजिन है, this is u axis and v axis, and this is d naught. From the center this distance is d naught, this is also d naught, मतलब d naught को इसको सेंटर मान के d naught का एक सर्किल लगा दो. So all the pixels which come within that circle, है ना, तो उनकी जो ब्राइटनेस, उनका जो उनकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो तो एज इट इज रखी हमने. उसका गेन वन का मतलब क्या होता है कि दोज पिक्सल इंटेंसिटीज आर बीइंग रिटेन्ड एज सच, वेयर एज जो पिक्सल इमेज के अंदर वॉट एवर इज द इमेज, जो पिक्सल इसके बाहर है आउटसाइड इन दिस पोर्शन, ये स्टॉप बैंड है, ठीक है ना. तो दैट मीन्स उन पिक्सल की जो 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 वैल्यू है, जो उनकी इंटेंसिटी वैल्यू है, दैट इज मेड इक्वल टू 0. हम ये कह रहे हैं यार, और कुछ नहीं कह रहे, है ना. समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा, समझना पड़ेगा ये तो. यस सर. तो ये है चक्कर. ये फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लो, कहां तक के पिक्सल की वैल्यू रिटेन की जा रही है वो यहां से थोड़ा सा पता लग गया. लेकिन इमेज मतलब टाइम व्हेन यू कन्वर्ट आफ्टर पासिंग ना, व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू स्पेस डोमेन, तो तुम्हारी इमेज ऐसी दिखाई देगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कट ऑफ पिक्सल डिस्टेंस. ये कह रहा है. तो नेचुरली देखो, इसको समझो थोड़ा सा. व्हेन आई टेक द पिक्सल कट ऑफ डिस्टेंस एज 2 such नंबर, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि आई एम सॉर्ट ऑफ अलाउइंग ऑल द पिक्सेल्स टू हैव देयर ओरिजिनल इंटेंसिटी वैल्यू. वेरी फ्यू इंटेंसिटी वैल्यूज आर बीइंग मेड 0, ज्यादातर तो आई एम नॉट टचिंग. यही तो मीनिंग है इसका. Whereas when your cutoff distance is 5 pixels, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, टू द सेंटर का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है दैट इज मेड इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पिक्सेल्स विल गेट अफेक्टेड, ओनली वेरी फ्यू विच आर नियर द सेंटर, they will survive their values, others will not. सीधी सी बात है. तो अगर जो तुम ऐसा कर रहे हो, that means you are heavily affecting the original image. ज्यादातर पिक्सल की इंटेंसिटी आपने चेंज कर दी. तो वो दिख भी रहा है तुमको कि when d naught is 5, then most of the pixels की जो इंटेंसिटी है that has been changed. And that's why it is looking like this, with so much blurred. 230 का मतलब all the pixel pass through the passband. That's the meaning. तो ये तुमको समझना पड़ेगा जरा, ठीक है ना. बटरवर्थ लो पास फिल्टर, ये बटरवर्थ लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स है, देख लो अपने आप. ये एक्चुअल रेस्पॉन्स है. आइडियल का तो ऐसे था ना, आइडियल का तो ऐसे था, दिस वाज आइडियल. अभी अभी किया है, ठीक है ना. ये थोड़ा सा कर्व्ड रेस्पॉन्स है, ये हमेशा जैसा ही होता है, ठीक है ना. और बटरवर्थ फिल्टर के साथ एसोसिएटेड है ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बटरवर्थ फिल्टर? This is the equation which contains n. You can see this is called the order of the filter. Order of the filter.
ठीक है ना। और फिल्टर देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, इट हैज बीन पास थ्रू द बटरवर्थ फिल्टर। और राइट में देख लो, ऑफ ऑर्डर 2 वी हैव सेलेक्टेड ऑर्डर 2 फॉर द फिल्टर एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज 5 पिक्सेल्स। एंड सिमिलरली ऑर्डर तो सभी में 2 का है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is being changed every time, filter order is remaining same, so that you can compare what is happening. समझ में आ रही है बात? So that you can compare what is happening. So here also you can, there is heavy blurring, ठीक है ना। whenever cutoff radius d naught is small, then there is heavy blurring, and when d naught is 230, d naught is 230, cutoff pixel distance is 230, most of the pixel are able to possess their original value, and I mean Butterworth filter से थोड़ा सा different है, and this is the original image. This is after the Butterworth, after the Gaussian filter, you have this as the output. और ये Gaussian filter का response है for different cutoff rate pixel distance. वैसे ये मतलब तुम देख लो, ये this is the comparison of all the three. That image, same image, when it is, ये भी पता, see d naught is 15, so that I mean you can compare them for the same value of d naught only. You will compare, d naught different होगा तो कैसे comparison करोगे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी चाहिए ना, कंपैरिजन तो तभी है ना। तो आपको क्या लग रहा है? बस ठीक है, जो लग रहा है वो लग रहा है। विच फिल्टर इज बेटर एंड विच इज नॉट, कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर इज नो कमेंट ऑन दैट, विच फिल्टर इज गुड एंड विच इज बैड। सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लो पास फिल्टर की एग्जांपल देखो, ये ठीक ना, वही बात है कि डोंट थिंक दैट लो पास फिल्टर इज ए सड़ा भुसा बेकार फिल्टर। नो, इट्स नॉट ए बेकार फिल्टर, इट्स वेरी यूजफुल। दिस इज द ब्रोकन टेक्स्ट, यू कैन सी ई जो है वो ब्रोकन है कि नहीं। तो दिस व्हेन दिस इमेज इज पास्ड, टेक्स्ट इमेज है ये, कोई बात नहीं, व्हेन दिस इमेज इज पास थ्रू द लो पास फिल्टर, ठीक है ना, गॉसियन फिल्टर से पास किया हुआ है एक हमने, तो देखो ई और ए जो थे वो ऐसे हो गए, ब्लर तो हो गए, देयर इज नो डाउट ब्लरिंग हैज टेकन प्लेस, बट एट द सेम टाइम द ब्रोकन कैरेक्टर is no longer broken. It has joined pixels. Naturally these scan lines are gone, but blurring has to take place. You cannot avoid it. So similarly, high यहाँ पे लिखूं तो H LP, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। यार ये पंगा यार, क्या पंगा है यार, बेकार का पंगा, ठीक है ना, ये पंगे बहुत ज्यादा हैं यार इसमें। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये आपका डी नॉट है मान लो, तो लो पास में दिस इज पास बैंड, हाई पास में दिस इज स्टॉप बैंड। यहाँ पे स्टॉप बैंड है, ये पास बैंड है, इसका ये 1 है, ये भी 1 है। तो अगर तुम कांस्टेंट 1 में से इसकी करेक्टर, कांस्टेंट 1 का मतलब ये 1 है, दिस माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस, तो इक्वल टू दिस आ जाएगा कि नहीं, बताओ, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ हाई पास फिल्टर इज 1 माइनस द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। तो ये देखो आइडियल हाई पास फिल्टर का रेस्पॉन्स देख सकते हो आप, यू कैन योरसेल्फ सी। और ये आपका रेस्पॉन्स है
ये आपका पास बैंड है, ये आपका स्टॉप बैंड है, समझ रहे हो? डी नॉट आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। डी नॉट, डी नॉट, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी नॉट है, ठीक है ना? आपका ओरिजिन है ये रहा, ये u इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पॉइंट है 0 0। तो ये हाई पास फिल्टर है। तो देखो, दिस इज द इमेज विच इज शोन एट द टॉप, ठीक है ना? ये इमेज जो है, इसको पास किया आइडियल हाई पास फिल्टर से विद डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आप देखो क्या आया, ब्लैकनेस तो होनी है, वो तो पता है आपको, हाई पास फिल्टर है, तो दैट मीन्स एवरेज वैल्यू जो है वो तो जीरो कर देगा इमेज की, ठीक है ना? तो एवरेज ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी। बट कैन यू सी दैट द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच वर प्रेजेंट, चाहे ए है, चाहे स्क्वायर है, चाहे कोई सर्किल है, कुछ भी है, जो एजेस हैं दे हैव कम आउट शार्प, उसकी एजेस जो है वो निकल के बाहर आ गई। दिस इज व्हाट हाई पास फिल्टर विल डू। ये एजेस को, बॉर्डर्स को हाईलाइट कर देता है, ठीक है ना? वो शार्प कर देगा। तो ये हाई पास फिल्टर है, ये बटरवर्थ हाई पास फिल्टर है। तो इसकी शक्ल तो आपको पता है, दिख रही होगी। ये वन डायमेंशन में इसका एक तरह से, मतलब वन डायमेंशन में अगर ड्रॉ करो कैरेक्टरिस्टिक्स को, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये है टू डायमेंशन में, आपको दिख ही रहा है। इक्वेशन ये है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, ठीक है ना? ये इक्वेशन है इस कर्व की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये समझ लो। या ये एक ही बात है, चाहे ये कर्व कह लो, चाहे ये कर्व कह लो, एक ही बात है। ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, समझ गए? इसकी इक्वेशन ये, इसकी व्हेन यू पास एन इमेज थ्रू द बटरवर्थ फिल्टर, तो बटरवर्थ फिल्टर से पास होके ये इमेज आ गई। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये गॉसियन हाई पास फिल्टर, तो उसकी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली इक्वेशन। तो ये इस कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व की इक्वेशन है ये, ठीक है ना? ये इसके रिजल्ट्स हैं गॉसियन फिल्टर के, गॉसियन हाई पास। ये तीनों का कंपैरिजन है, देखो, आइडियल हाई पास, बटरवर्थ एंड गॉसियन। कंपैरिजन व्हेन डी नॉट इज केप्ट सेम 15। तो किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, वो तुम देख लेना। व्हाट इज गुड इन लाइफ एंड व्हाट इज बैड, ये छोड़ो यार। ये लाप्लासियन जैसे, मतलब फिल्टर का फंक्शन होगा, ऐसे लाप्लास फिल्टर इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना? ये एक फिल्टर है, लाप्लासियन फिल्टर, लाप्लासियन फिल्टर। तो इसका भी एच यू वी होता है एक, ठीक है ना? विच इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ एच यू वी ऑफ ए लाप्लास फिल्टर, ये है। तो बस